Good morning everyone. My name is Shivansh and I am a volunteer of Shiksha Kranti and I welcome you all to this platform. Today we have talked a lot about generation gap and I have some questions from Satyan sir regarding this topic. So good morning sir. Hello dear, good morning. Sir, as we know, generation gap refers to the chasm that separates the beliefs and behavior belonging to the members of two different generations. Or we can say more specifically, a generation gap can be used to describe the difference in thoughts and actions between younger generation versus older generation. Sir, I want to ask you a question: is it good to impose our thoughts on our children? It is not at all good to impose ourselves on anybody, be for that matter why on children. We should not impose ourselves on children. Instead, we should make them understand what we think is not right for them. So if there is generation gap because of the difference of opinions, because of the difference in thinking, difference in action, difference in thoughts, difference in beliefs, so it is our duty, it is the duty of the grown-ups to make children understand why that is wrong, why that is right, I think. Sir, if we are with our parents and they don't allow us to speak in front of them and they don't listen to us regarding of any topic, so is it good? Shivansh, if this is the matter, I think it is not good on parents' part. Parents should give liberty to their children, of course, with due respect. Children should not be disrespectful towards their parents. If they are disrespectful, then naturally there will be more and more generation gap. I think generation gap should be there. Two generations belong to different time, and time has its own characteristic. Time has its own inventions, time has its own developments, time has its own टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. जो जनरेशन गैप है, जैसे आपने सुना होगा एक जनरेशन जेड बोलते हैं, यानी जो बच्चे 90s में पैदा हुए या अर्ली 20th सेंचुरी में पैदा हुए हैं उनको जनरेशन जेड बोलते हैं. वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनको टेक्नोलॉजिकल, उनकी डिजिटल टेक्नोलॉजी है, उनको अच्छी तरह से हैंडल करनी आती है, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, जनरेशन जेड कहा जाता है. उसी तरह से जनरेशन एक्स बोलते हैं जो कि 65 और 80 के बीच में जन्मे हैं, यानी जो बेबी बूम भी बोलते हैं, कुछ और भी. अमेरिका से ये ट्रेंड हुआ था कि जो पिछले जो जनरेशन एक्स है, थोड़े से जो 70s के दशक में जो पैदा हुए हैं, तो उनको जनरेशन एक्स. तो इस तरह से कुछ ना कुछ नाम आते रहते हैं और अलग अलग समाज से आते हैं. तो मुझे लगता है कि शायद इंडिया में ठीक है जनरेशन एक्स भी होगी, जनरेशन जेड भी होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जनरेशन कुछ भी ना हो. जनरेशन गैप होना चाहिए. और जिसको मुझे लगता है कि जब जनरेशन गैप हमारी संस्कृति के मुताबिक होगा तो क्या होगा, उनमें रिस्पेक्टेबल गैप होना चाहिए. अगर आप ये चाहो कि जी गैप को ख़त्म करो, तो क्या शिवांश आप चाहोगे कि आप अपने पापा के कंधे पे हाथ रखो, चले यार घूमने चलते हैं? वैसा तो नहीं होना चाहिए ना. बिहेवियर में तो कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्टेबल गैप होना चाहिए और कहीं ना कहीं विचारों में समता होनी चाहिए. और वो सबसे बड़ा जिम्मा होता है माँ बाप का होता है और गुरुजनों का होता है और बड़ों का होता है. आपने जैसे कहा कि पेरेंट्स उनको अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो बड़ी गलत बात है. जैसे अब हम यहाँ पे ये जो डिस्कशन टेबल है, हम सबको इनवाइट करते हैं और मैं उनके साथ बैठ रहा होता हूँ. हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस जो हमारे डिस्कशन टेबल है, इस पे बच्चों को अपने सम्मान लाया जाए, इनमें समता का भाव हो. लेकिन अगर उस समता में सम्मान नहीं आया, रिस्पेक्टेबल गैप नहीं रहा, तो मुझे लगता है कि वो अच्छी बात नहीं है. तो इस अर्थ में, इन अर्थों में जनरेशन गैप गलत है और अदरवाइज जनरेशन गैप रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. Nowadays, children got depressed because of the aggressive nature of their parents. And don't you think is it good to stay friendly with them? आई थिंक बहुत अच्छा प्रश्न उन्होंने पूछा है कि आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं. उनमें एग्रेशन क्यों पैदा हो रहा है, सोचने वाली बात है. कहीं ना कहीं कमी तो सबकी है, चिल्ड्रन की भी है, पेरेंट्स की भी है, सबकी कमी की. एग्रेशन उनमें क्यों बढ़ रहा है? एग्रेशन उनमें इसलिए बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं जो उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं
जो उनकी डिज़ायर्स है, जो उनके गोल्स है, जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, पेरेंट्स स्टार्ट टू मीट देयर एक्सपेक्टेशन। जब माँ बाप अंधे होकर उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना शुरू करते हैं, और उन महत्वाकांक्षाओं की, उन इच्छाओं का अंत तो होता नहीं, तो कभी ना पूरी हो सकने वाली इच्छाओं के लिए जब वो तरसते हैं, पूरी नहीं होती है, तो उनमें अग्रेशन आ जाता है। तो पेरेंट्स को ही देखना चाहिए कि अगर बच्चा कुछ कह रहा है, मोबाइल फ़ोन मांग रहा है, तो पेरेंट्स को देखना चाहिए कि उसकी यूटिलिटी क्या है, उपयोगिता क्या है, वो क्या एजुकेशन पर्पस के लिए कर रहा है, या मूवी देखने के लिए, या सॉन्ग देखने के लिए, या उसको पैसिव कंज्यूमर बन रहा है। तो मेरे विचार से बच्चे में एग्रेशन तब आता है जब वह किसी भी इन वस्तुओं का, डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है, इनका ब्लाइंड कंज्यूमर बन जाता है। यानी जब उसको पता ही नहीं होता है कि मैंने क्या करना है, कितना देखना है, संयम नहीं होता है। जैसा मैं आपसे कह रहा था कि आज की जो है ये जनरेशन, इसको बोला जाता है जनरेशन Z बोला जाता है। क्यों? क्योंकि दे आर गुड एट हैंडलिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी, दे नो हाउ टू हैंडल, दे नो हाउ टू यूज़ डिजिटल टेक्नोलॉजी अनलाइक वी नो। यानी बड़ों को इतना अच्छी तरह हैंडल करना नहीं आता है। तो वो चीज़ें बच्चों में क्या आती है, मान लीजिए आप शिवांश और आपके पिताजी जो है वो है, आपको सेल फोन अच्छा लगता है, आप बनना चाहते हैं इंजीनियर, और आपके पापा चाहते हैं फार्मासिस्ट आपको बनाना, तो वो ठीक है, एक जनरेशन गैप है, उस गैप को पूरा किया जा सकता है संवाद से, उस गैप को पूरा किया जाता है एक विजन अपने सामने रख के, उस गैप को पूरा किया जाता है कंसल्टेंसी से, करियर काउंसलिंग से, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन एक गैप ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स जो है वो यूट्यूब चलाना नहीं जानते हैं, इंस्टाग्राम पे क्या क्या चीज़ें होती है वो नहीं जानते हैं, लेकिन आपको तो आती है। तो अगर वो चीज़ें आपको आती हैं तो आप में वो चीज़ नहीं आनी चाहिए, मुझे तो ये आता, मेरे पापा को नहीं आता है। यानी जब बच्चा यह सोचने लग जाए कि मैं ज़्यादा जानता हूँ मेरे मम्मी पापा से, तो समझ लेना कि जनरेशन गैप वो ख़तरनाक है। समझ लेना कि वो फिर जनरेशन गैप है, उसमें रिस्पेक्टेबल गैप नहीं रहा है। तो जनरेशन गैप बुरा नहीं होता है अगर उसमें अगर क्या है, रिस्पेक्टेबल गैप है। तो वो रिस्पेक्टेबल गैप का मतलब ही होता है कि अगर एक बच्चे को माँ बाप से ज़्यादा ज्ञान आ गया है, तो बच्चे को ये नहीं भूलना चाहिए जो माँ बाप के पास अनुभव है ना, समय के साथ बच्चे के पास नहीं होगा। बच्चे के पास जो है पुस्तक को जानने का अनुभव हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुभव हो सकता है, इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, जितनी भी डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ज्ञान है उसका उसके पास ज्ञान हो सकता है। लेकिन जो माँ बाप के पास अनुभव है वो माँ बाप के पास ही है। हाँ, अगर बच्चे को लग रहा है कि शायद मैं मम्मी पापा से सहमत नहीं हूँ, तो बच्चों को सेकंड थर्ड ओपिनियन के लिए टीचर को पूछना चाहिए और काउंसलिंग करनी चाहिए, और उस लिहाज से करनी चाहिए कि माँ बाप को भी बुरा ना लगे, मुझे लगता है। तो इसलिए तो आप कम्युनिकेशन स्किल सीख रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। When we go with our parents in family get-togethers, there is a presence of our all relatives and neighbors. And whenever they ask us in a random talk that what are you doing in your academics, or are you employed, and such kind of talk, and then they disrespects our knowledge. So like they said, but if you done your graduation or you do your degree in engineering, you are still unemployed. So You have done your engineering, you are still unemployed. Yes sir. देखिए, ये बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रश्न पूछा। ये आज का जो माँ बाप और बच्चों के बीच में जो एक असंतुष्टि का जो लेवल है ना, डिससेटिस्फेक्शन का लेवल है, वो आज सबका ऊंचा ही है। बच्चा अगर बहुत कुछ कर रहा है तो माँ बाप क्या करते हो, भड़ास निकालते हैं, इतना कुछ पढ़ लिया क्या मिला, जॉब तो हुई नहीं। तो ये तो माँ बाप की कमी है। और एक कारण ये भी है कि जो बच्चा बिगड़ रहा है, जो बच्चा विद्रोही बन रहा है। विद्रोह कब करता है बच्चा? जब उसके साथ जो है समझा ना जाए, उसका सहयोग ना किया जाए, उसको प्रेरणा ना दी जाए। अगर वो कुछ कार्य कर रहा है तो माँ बाप को चाहिए कि बेटा ठीक है, हम साथ हैं, होता है तो ठीक है, नहीं होता तो भी क्या है, खेती बाड़ी कर लेंगे, कुछ ना कुछ कमा लेंगे। लेकिन आपने देखना ज़्यादा से ज़्यादा घर में ये होता है, क्या कर लिया तूने, फ्रस्ट्रेशन, और वो भी भड़ास निकालेंगे, माँ बाप भड़ास निकालेंगे और फट देख के बोलेंगे कि क्या कर लिया तूने, इतने पैसे बर्बाद कर दिए, इतना समय लगा दिया, इतने साल हो गए, हाथ क्या आया, हाथ क्या आया। तो ये तो एक हमारे समाज में जो विकृति है ना, यानी जो समाज का जो हमारे पतन हुआ है मूल्यों का, फैमिली वैल्यूज़ की जो डिसइंटीग्रेशन है, उसकी वजह से। और देखना कोई घर, आज तक मुझे तो कोई ऐसा घर, शायद 2-4 घर मिले होंगे, इतने घर में जाता हूँ तो शायद बहुत ही कम घर ऐसे मिले जो पेरेंट्स ये बोलते कि बेटा कुछ बेशक ना बने लेकिन अच्छा इंसान ज़रूर बनना।
जो माँ बाप ऐसा बोले कि हम खुश है, बेशक हमारे बच्चे कुछ नहीं बने, अच्छे इंसान तो है, 2 वक्त की रोटी कमा रहे, खून पसीने की कमाई खा रहे, ऐसे पेरेंट्स का होना आज के समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे पेरेंट्स नहीं होते हैं तो मुझे लगता है कि अशांति रहेगी। और आज देख लो आप, क्यों हमारे पास आज क्या कुछ नहीं है। हमारा देश आध्यात्मिक देश है। हैप्पीनेस इंडेक्स में देखो कहाँ स्टैंड कर रहा है। यानी जो सर्वे होते हैं ना कि खुशहाली के लिए जो सर्वे किए जाते हैं वैश्विक स्तर पर, तो हमारा देश कोई अच्छा नहीं कर रहा है। हमारा देश बहुत लो रैंक है। कारण यही है कि माँ बाप की या तो उनकी अति महत्वाकांक्षाएं या अति उनकी डिज़ायर्स है, वो सेटिस्फाइड नहीं है। वो एक दौड़ लगी है कि कमाने के लिए, खाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए दौड़ लगी है, तो सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं है। तो अगर आज हमें समाज को अच्छा बनाना है, परिवार को अच्छा बनाना होगा, और परिवार में अगर माँ बाप समझ नहीं रहे तो बच्चों को समझना होगा। अगर माँ बाप किसी की गलत भी जा रहे हैं, अगर माँ बाप उनको चैलेंज करे कि तुम ये नहीं करते, वो नहीं करते, जैसे आप कह रहे हैं क्या किया तुमने, इंजीनियरिंग की, हाथ क्या लगा, कुछ नहीं है, लाखों रुपया गंवा दिया, उसका बेटा ये करा, उसकी बेटी ये करी, तो मुझे लगता है माँ बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप को कम से कम संतुष्टि का जो स्तर होता है ना, वो लाना चाहिए। कम से कम मेरे विचार से माँ बाप को बोलना चाहिए, बेटा आई एम विद यू, नो प्रॉब्लम, गलत नहीं जाना है, चलते चलते दिन बेशक ढल जाए, बैठे और सोए नहीं ढलना चाहिए। माँ बाप को ये बोलना चाहिए। My last question is that like children or youth of my age started arguing with their parents when their knowledge, their self-respects are on stake. So don't you think our parents should also respect our knowledge, or they should also respect us, but we are? शिवांश जी, मुझे लग रहा है कि आप सचमुच जो आप बातें कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि इनकी अपने घर की, ये सबके भी आप पे बात कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है, ये बड़े अच्छे संकेत है कि इनकी एक ऑब्जर्वेशन पावर हुई है। तो हम कहते भी इस मंच पर ये क्या कहते हैं हम, कि सबसे पहले ऑब्जर्व देन सर्व। यानी अगर आपने किसी को सर्व करना है, पहले ऑब्जर्व करो ताकि आपका बेवकूफ़ ना बनाए। धर्म करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और दूसरी बात, जब आप किसी को दुख में देखते हैं ना, तो आपको एब्जॉर्ब नहीं करना उनका दुख। कई बार क्या होता है, हमारे सामने ये वॉलंटियर बैठी, चलो मैं नाम नहीं लूँगा इनका, मान लीजिए कोई दुखी हो गया तो ये दुखी हो जाएगी, आहा ये ऐसा, इनको ये सोचना चाहिए पता नहीं वो इंसान क्यों दुखी हुआ है, उसके अपने कर्म भी तो होंगे भैया। जो हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए कि इनको उनके दुख में आंसू बहाने चाहिए, लेकिन आंसू बहाने से ज़्यादा इनको दिमाग लगाना चाहिए कि मैं कहाँ सहायता कर सकती हूँ, किस एंड पे मैं इनकी सहायता कर सकती हूँ। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम अक्सर कहते हैं कि ऑब्जर्व बिफोर यू सर्व एंड डू नॉट अब्जॉर्ब। अब्जॉर्ब होता है ना कि हाँ जी, किसी के दुखों को अपने में समा लेना, फिर उदास हो जाना, दुखी हो जाना, कचरा फेंक रहे हैं, मर जाएंगे, कोरोना हो जाएगा, बीमारियाँ फैल जाएगी, तो सब मरेंगे भैया, हम तो अपना काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें तटस्थ सा होना चाहिए, सबसे पहले तटस्थ रहने की कोशिश करनी चाहिए। जो आपका प्रश्न क्या था? हमारे पेरेंट्स को भी हमारे ज्ञान का सम्मान करना चाहिए, और मुझे लगता है कि सचमुच पेरेंट्स को भी हमारे ज्ञान का सम्मान करना चाहिए। पेरेंट्स को ज़्यादा उनको देखना चाहिए कि वो किस पोजीशन में, वो इस पोजीशन में कि उनके पास अनुभव की दाती है, उनके पास अनुभव का धन है, उनके पास ज़िंदगी भर का अनुभव है। तो उनको जो है भोग विलासी की जैसे नहीं होना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि उससे कोई ज़्यादा नहीं हो जाएगा, उनके बच्चे आगे चले जाएंगे उनके बोलने से। तो अगर पेरेंट्स को सुख शांति से जीना है तो प्रेशर नहीं बच्चों के ऊपर डालना चाहिए। और जो ये कह रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि बच्चे को रिस्पेक्ट करना चाहिए कि कम से कम बच्चा चल रहा है, कर रहा है, पहुंचा नहीं पहुंचा। क्योंकि हमारी जो आध्यात्मिक जो हमारी एक विरासत रही है, आध्यात्मिक हमारा जो संस्कृति रही है, वो यही कहती है कि चलना ज़्यादा महत्वपूर्ण है पहुंचने से। मंजिल तो पता नहीं कहाँ मिलती है, मिलेगी नहीं, चलने की ओर ज़्यादा ध्यान दो। तो बच्चे को ये देखते रहो कि सोया ना रहे और वो हर कहीं खोया ना रहे, भटका ना रहे, रास्ते पे चलता रहे। तो पेरेंट्स को खुश होना चाहिए। देखो जी, हम तो अब खुद भी खुश है। I have one more question. Like when we start to argue with our parents, so it is our family matter, so it is good to take opinion from the third person. बहुत बढ़िया, इन्होंने बहुत अच्छा कहा। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए
हमारे पेरेंट्स के साथ डिस्कशन हो रही है, कई बार आर्गूमेंट भी हो जाती है। अब थर्ड ओपिनियन फोर्थ ओपिनियन के लिए बाहर जाना या अच्छा है कि नहीं है, मुझे लगता है सचमुच ये अच्छा नहीं है। कम से कम जो आज का समय है, वो आज का समय क्या है, अगर आप किसी तीसरे के पास बातें बताएंगे तो पहले वो हंसेंगे, पहले वो खुश होंगे। क्यों होंगे वो खुश? वो दूसरों के दुख को देख के खुश होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो दूसरों के दुख में दुखी और सुख में सुखी होंगे, पर इस संसार में ऐसे भी लोग ज़रूर मिलेंगे आपको जो दूसरों के सुख में सुखी और दूसरों के दुख में दुखी है। अगर कोई इंसान आपको ऐसा मिल जाता है, कोई मित्र हो, गुरु हो, मामा हो, चाचा हो, कोई भी हो सकता है, तो वो आपको ज़रूर उनसे शेयर करना चाहिए। तब तो सेकंड ओपिनियन क्या, थर्ड ओपिनियन भी, जितने ओपिनियन हो लेने चाहिए। So that was random discussion and that's all for today. Thank you for being with us. If you have some questions from us, so please write down in the comment section. We will try to answer your questions. If you think whatever we are talking is worth for you, so please do subscribe to our channel. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Vishwa.